قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دیکھ رہے ہیں YES24 نیوز اور میں ہوں کوثر علی. آج چونکہ ایک بہت ہی اہم دن مانا جاتا ہے، خاص کر کے 11ویں شریف، چونکہ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو خاص کر کے سنی جماعت سے لوگ ہوتے ہیں. چونکہ یہ ایک سنی جماعت کے لیے ایک بہت اہم دن ہوتا ہے. اس میں جو ہے کہ آج 11ویں شریف کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہ فاتحہ نظر کی جاتی ہے. میں ابھی ہوں آپ کو پیاور گاؤں میں، جہاں کے مدرسہ پہ ایک بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے کہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ چونکہ فاتحہ تو ہے، اور اس میں جو ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب ان کے بارے میں بتایا تو گیا ہے، لیکن باقی اور کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ساتھ اس مدارس کے کافی مولانا لوگ ہیں، اور جو کافی جو کہ اہم رکھتے ہیں خاص کر کے اپنے چھیتر میں. تو میں ان لوگوں سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں سبھی کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل YES24 نیوز پہ. جی ابھی ہم بات جن سے کریں گے وہ حضرت مولانا رحمت صاحب ہیں، جو کہ یہاں کے ہیڈ مدرس ہے، جس کو انگلش میں پرنسپل بھی کہا جاتا ہے. میں سب سے پہلے انہی سے بات کروں گا. اور سب سے پہلے تو سر آپ کا مطلب میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے چینل YES24 نیوز پہ. چلیے شکریہ کہ آپ قیمتی وقت نکال کر کے میرے اس پروگرام میں شریک ہوئے. شرکت کرنے کا شکریہ ہم سب لوگ اپنے ٹرسٹ کے تمام ممبران کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہاں، تو میرا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ جس طریقے سے آج جو ہے مطلب مسلم قوم جو ہے کہ کئی تنظیموں میں بٹ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج جس طریقے سے یہاں کا پروگرام آرگنائز ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے پورے اس کمیونٹی کو جسے سنی کہا جاتا ہے؟ یہ ختم قادریہ لنگر غوثیہ بہت متبرک اور بابرکت محفل ہوا کرتی ہے. یہ دعا کی محفل ہے. میرے اس ٹرسٹ کے رجسٹریشن ہوئے 1 سال ابھی ہوئے ہیں. ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے وقت ہی ہم لوگوں کا ارادہ ہوا کہ اس کے تحت بہت سارے فلاحی کام ہمیں کرنے ہیں کہ جس سے قوم کو فائدہ پہنچے، ملک و ملت کو فائدہ پہنچے. تو سب سے پہلا کام جو ہم لوگوں نے گزشتہ سال کیا وہ ختم قادریہ اور لنگر غوثیہ کا اہتمام محمودیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام کیا. محمودیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام ہی ہوا ہے کہ قوم میں جو پسماندہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تعلیمی ترقی کے لیے کوشش کرنا، جو غریب بچیاں ہیں ان کی شادیوں کا اہتمام کرنا، اور ہمارے قوم میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو مین اسٹریم میں سے جوڑنا ان کو ہے تاکہ ان کی بھی حالت اچھی ہو جائے، مستحکم ہو جائے. اسی کے تحت ہم لوگ ختم قادریہ کا اہتمام کرنا شروع کیے کہ اس مقدس محفل میں جب لوگ آئیں گے تو اس ٹرسٹ کو بھی جانیں گے اور اس کے فائدے بھی ان کے سامنے بتائے جائیں گے کہ ان کے مقاصد یہ ہیں، یہ کام کرنا ہے. جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال جب ختم قادریہ اور لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا جائے گا تو ممبران کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک غریب بچی کے نکاح کا بھی اہتمام اسی موقع پر کیا جائے. بہت ہی بہترین اور ایک خاص میسج جا رہا ہے خاص کر کے اس مدرسہ سے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے بتایا اس بات کو کہ یہاں کی جو مدارس ہے اس میں صرف جو ہے کہ ایجوکیشن کی ہی بات نہیں ہوگی بلکہ ان غریب بچوں کی بھی بات ہوگی جو لوگ کہیں نہ کہیں سیاسی طور پہ یا سماجی طور پہ یا دینی طور پہ جو ہے کہ الگ رہ گئے ہیں. میں ابھی کچھ یہاں اس تنظیم کے جو ہے کہ کچھ ممبران ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا کہ کیا لگ رہا ہے کہ اس میں جس طریقے سے آپ لوگ اس کو چلا رہے ہیں، کبھی کبھی فخر ہوتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ بھائی ہمارے گاؤں میں اس طریقے کا ہے. کیا چاہیں گے کہ اس کو اور جگہ پہ آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے، آگے بڑھائیں گے کیا اس کو؟ السلام علیکم. ہمارا نام اکرام احمد ہے اور ٹرسٹ کے ایک ممبر کی حیثیت سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جس متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلا مقصد ہے کہ آپس میں اتحاد، اتفاق اور ملت، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہم لوگوں کے لیے ہے. اور اس سے جڑی ہوئی جو بھی ساری باتیں ہیں
वो सारी हम लोगों को उसका ध्यान रखना है। और सबसे पहला जो हम लोगों का मकसद है वो एजुकेशनल है कि बच्चों को तालीम, और ये जो सारे प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो हम लोगों ने ट्रस्ट का जो बुनियाद रखी है 1 साल पहले से, उसका मेन मकसद हम लोगों का तालीम है। और बाकी तो हाफिज़ साहब ने आपको सारी बातें बता दी हैं, और इस मुतल्लिक पे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, चंद लाइनें। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त से पहले सफ़े दुरुस्त कर लें, वक्त से पहले सफ़े दुरुस्त कर लें, और पैरवी करना है तो अपने नबी की कर लें, पैरवी करना है तो अपने नबी की कर लें। और ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, और जो तलब है सिर्फ़ अपने अल्लाह से कर ले। कहने का मतलब ये है कि हमारा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक, और जो भी हम लोगों से हो सकेगा, और जो मौलाना साहब ने शादी के मतलब, ये सबसे हमारा ये 2 ही हमारा मिशन है। एक तो गरीब को आगे बढ़ाना और तालीम देना, और शादी, और इसका मकसद। जैसे गुड्डू भाई ने बताया कि जो तलब है उसे अल्लाह से कह ले, बिल्कुल बहुत ही मुफीद और बहुत बेहतरीन इन्होंने बात कहा। अच्छा लगा मुझे भी। कहने का मतलब है कि एक मैसेज आता है। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, और ख़ास करके आज के इस दिन पे रोशनी पे जी हाजी इस्तियाक साहब हैं, चूँकि हज़रत थोड़ा सा और आगे आ जाइए, तो मैं उनसे ये बात करूँगा, चूँकि आज के ताल्लुक़ के हिसाब से जिस तरीके से मदारिस का जो एक रुख जो है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं वहाँ जो कि सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, दुनियावी की तरफ क्या आप लोगों का रुख है, ज़रा इसके बारे में बताइए। दीनी और दुनियावी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे इस ट्रस्ट का मकसद ये है कि हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से रोशन हासिल करें। ये नहीं कि हम ये सिर्फ ये अरबी और अरबी तालीम देनी, इंग्लिश, मैथ, जो कुछ भी दुनियावी तालीम है उससे भी हमें रोशन हासिल करनी है। और प्लानिंग तो हमारी बहुत सारी हैं, रह गए जैसे IAS IPS। इस मामले भी अगर कोई बच्चा गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारी ख्वाहिश है उस बच्चे को हम आगे बढ़ाएं और उसके अखराजात को हम बार को कबूल करें, समझे ना। तो इंशाअल्लाह हमारी उम्मीदें हैं और ख्यालात हैं, अल्लाह इसमें हमारी गैबी मदद करे। गांव तो बहुत छोटा है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, और अब इस सपने में जो है कि एक निखार देने के लिए यहाँ के मदारिस और यहाँ के उलमा जो है कि अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये प्याउर गांव जो है कि पूरे ज़िले के लिए एक आइकॉन बने। इससे के भी लोग हैं और आम लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों का मकसद क्या है और किस मकसद से उन लोगों ने इतने बड़े ट्रस्ट को खड़ा किया है। आज एक बेहतरीन प्रोग्राम भी इन लोगों ने रखा है। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ के जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी लोग हैं, या जो बाहर से आए हुए हमारे गेस्ट हैं, या जो इस मदरसा के जो मदरसा के चलाने वाले जो संचालक हैं, मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम जो कि मदरसा युवा बोर्ड, ये मदरसा युवा संघ के अध्यक्ष, शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब भी इत्तेफाक से यहाँ पे हैं, तो मुझे लगा कि पहले उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि आप लोग भी जो कि ट्रस्ट को कहाँ कहाँ बढ़ा रहे हैं और किस मकसद से आप लोग बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, इमरान साहब का। शुक्रिया सर, ये चूँकि आपका तो कारवां बहुत लंबा बढ़ रहा है, और ख़ास करके मैं देख रहा हूँ कि सुनबरसा से निकल करके आप ज़िले के हर एक मदरसे में आपको मैं देख रहा हूँ। क्या मकसद है आप लोग का, मतलब क्या चाहते हैं कि किस तरीके से ट्रस्ट हो, या मदरसा हो, या एजुकेशन हो, या मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में ज़रा थोड़ा रोशनी डालिए आप इसमें। आज प्याउर गांव में मदरसा मोहम्मदिया के अंदर मोहम्मदिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ताल्लुक़ से उनके ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम हुआ ख़त्म क़ादरिया का। सरकार गौसे आज़म के मौके से, यानी उनकी याद में इस महफ़िल को सजाया और रचाया गया था। सबसे खुशी की बात यह है कि जब यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ के लोग बहुत ही एक्टिव हैं, इसलिए कि जिस ट्रस्ट को इन लोगों ने बनाया है वो सिर्फ़ एक ज़ात, एक धर्म, एक कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है। इसमें इनका सबसे पहला मिशन ये है कि हम यतीम, गरीब, साथ ही साथ जो मुस्लिम या अदर में जो लोग भी गरीब हैं और उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो इसके ट्रस्ट के माध्यम से वो उनको हर किस्म की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ ये कारवां इंशाअल्लाह ये सिर्फ बिहार नहीं बल्कि ये पूरे इंडिया लेवल पर जाएगा। हमारे साथ इकराम साहब भी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इस ट्रस्ट के जो है कि ट्रस्टी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इकराम साहब अपने चैनल पे। जी सलाम। जी थोड़ा सा बताएं आप, चूँकि आपके गांव में प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है और इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप लोग अभी करा रहे हैं, लेकिन छुपा के रखे थे आप लोग, क्या मकसद कुछ था क्या इसका?
हमारे भाई कौसर साहब थोड़ा सा ये प्रोग्राम न छुपाने का है न दिखाने का। ये प्रोग्राम हज़रत गौस पाक के फजल हासिल करने का एक प्रोग्राम होता है जो 2 सालों से लगातार हो रहा है। महमूदिया एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले मदरसा महमूदिया के अहाते में ये इस ट्रस्ट का दूसरा प्रोग्राम है। हमारे इलाकाई उलमा और आवाम नहायत जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं, फाइनेंशियली भी और सोशली भी, हर तरह के हिस्सा लेते हैं, इसमें ताउन करते हैं और इसका फ़ज़ल उठाते हैं। ट्रस्ट के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें, जी बिल्कुल, बहुत तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो पाएगी, एक मुख्तसर सी बात मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आपके चैनल के ज़रिए आवाम उन लोगों तक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है पहुँच सके। ये हमारे ट्रस्ट की बुनियाद आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले रखी गई और इसका रजिस्ट्रेशन आज से 2 साल पहले ले लिया गया। इसका असली मकसद है तालीमी फ़रोग़, जो आम तौर से कौम मुस्लिम के तालीमी हालात और तालीमी स्टेटस नीचे की तरफ जा रहा है, इसको फ़रोग़ देने का और इसको मुतहर्रिक करने का असली मकसद है। इसके अलावा कुछ वेलफेयर का काम भी हम अपने अंदर रखे हुए हैं ताकि इस ट्रस्ट के ज़रिए हम वेलफेयर का भी काम करें। अब इसमें हमारे ट्रस्टी का काम होता है या एक तरीक़ा है कि हम बैठ के तय करें कि किन हालात में और किन वक्तों में हमारे सोशल और सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तय करेंगे और उसकी खिदमत अंजाम देंगे। बहुत ही बुनियादी बात इकराम साहब ने बताया, हालांकि वक्त कम है। जी बोलिए जल्द। मैं तबारक हुसैन परफेक्ट पब्लिक स्कूल आंदर से। जी, ये ट्रस्ट का सोच तो बहुत पुराना था, लेकिन ये हम लोग बहुत समय गुजार दिए जो है, लेकिन काम जो है चल रहा है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे मदरसा के अंदर में जो है कि गरीब का तो जो तालीम दिया जा रहा है और गरीब बच्चे तालीम ले रहे हैं, लेकिन एक मदरसे तक ही सीमित रह जाते हैं। जो है बहुत सारे बच्चों का एक होप होता है, उम्मीद होता है कि वो आगे बढ़ें और आगे कुछ करने का उनका जज्बा रहता है, जो मदरसे से नहीं हो पाता है। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए महमूदिया एजुकेशनल ट्रस्ट जो है आपके सामने ये बहुत बड़ा एक मैसेज लेके आया है, जिसमें हम छोटे गरीब बच्चों को, जिसमें अनाथ बच्चों को हम बढ़िया एजुकेशन दे दें और उस बढ़िया एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे इस मोहल्ले में, इस एरिए में जो भी बच्चियों का, जब गरीब बच्चियों का जो शादी नहीं हो रहा है, उन बच्चियों को शादी कराने के लिए भी ये ट्रस्ट हमेशा के लिए आगे बना रहेगा। यही हमारा कहना है और इसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें जुड़े और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बिल्कुल, ये मैसेज यस 24 न्यूज़ भी देगा कि जिस तरीके से यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और जितना मतलब खुशदिली से जिस तरीके से मतलब यहाँ का प्रोग्राम हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये बिहार के लिए एक आइकॉन बनेगा और बिहार के लिए एक मिसाल बनेगा। मैं भी इसको उम्मीद करता हूँ और मैं इसी प्रोग्राम के साथ मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जो प्रोग्राम होगी उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़ी चैनल आए, ताकि एक दुनिया के लिए एक मुकद्दस और जो है कि एक बड़ा मैसेज दे सके यहाँ से। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज़ के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज़।